Assalamu alaikum dear students. A very warm welcome to my YouTube classroom. This lecture is a continuation of the previous or first lecture we conducted on Ode to a Nightingale by John Keats. Today we will try to understand and analyze the remaining two stanzas of this beautiful ode. The last two stanzas become special because of some medieval references and the negative capability of John Keats. Keats has immortalized the song of Nightingale on the one side, and he is desperate and sad on the other side because of his eroding and fleeting state of life. The last two stanzas highlight the acceptance of reality on the part of Keats. The short, fanciful honeymoon trip of escapism into the world of Nightingale comes to an end, and finally bitter and sordid reality asserts itself again. So let's move forward towards the textual analysis of the remaining two stanzas. Thou wast not born for death, immortal bird, no hungry generations tread thee down. The bird is immortal. Nightingale is immortal for John Keats. And what he's saying, you are not born for death. You are immortal. No hungry generations. Making reference to the human beings, or possibly making reference to the hunters who can hunt the nightingale. No hungry generation tread thee down. Nobody can defeat you. You will remain forever. And of course, he is trying to say that the song of Nightingale will remain forever. Of course, Nightingale as a bird is not, immortal. It's very much mortal. But that song, that penetrating song, that is immortal. और इस सॉन्ग को आप कंपेयर कर सकते हैं उसी सॉन्ग के साथ जो वर्ड्सवर्थ ने रेफरेंस दिया था सॉलिटरी रीपर के अंदर, वो जो स्कॉटिश गर्ल थी, द गर्ल हु वाज सिंगिंग दैट सॉन्ग, या फिर वही सॉन्ग जो हम एबिसिनियन मेड का सुनते हैं, कॉर्ली जिससे मेस्मराइज्ड हो जाता है कुबला खां के अंदर. The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperors and the clown. This voice, this song, it is not only meant for me. It has heard by so many other people. Even in the ancient times, the kings and the clowns. ये दो चीज़ें हैं, king and clown, the elite and the street, the higher stratum of the society and the lower segment of society. तो बताने का मकसद क्या है कि उसने इस चीज़ को जनरलाइज किया, दैट दिस सॉन्ग इज़ फॉर एवरीवन. इवन द किंग्स हैव एंजॉयड दिस सॉन्ग एंड ऑल्सो द क्लाउन्स, दे हैव ऑल्सो एंजॉयड दैट सॉन्ग. Perhaps the self same song that found a path through the sad heart of Ruth when sick for home. She stood in tears amid the alien call, the same that oftentimes has charmed the magic casements opening on the foam of the perilous seas in fairylands forlorn. हम इस स्टैंजा को कंप्लीट कर रहे हैं एक वर्ड के ऊपर जो क्या है, forlorn. forlorn, loneliness मीनिंग इसका होता है, तन्हा, बिल्कुल इस तरह से सिचुएशन. अच्छा जी, ज़रा सुनिएगा, रेफरेंस दे रहा है बाइबल की तरफ. बाइबल में रुथ का जिक्र आया हुआ. रुथ को आपने पढ़ा भी ना, वर्ड्सवर्थ की पोएम भी आपने पढ़ी, तो रुथ का एक बिब्लिकल मीनिंग भी है, ठीक है. और ये एक ऐसा करैक्टर है जिसको हम आम तौर पे एसोसिएट करते हैं पैलेस्टाइन के साथ या इज़राइल के साथ, जो इस वक्त का इज़राइल है, इस इलाके के साथ. तो जो रुथ की पीछे स्टोरी है वो क्या है, शी वॉज मैरिड टू समवन एल्स एंड ही डाइड, हर हस्बैंड डाइड. Then she left that place and went to another place. That was perhaps Palestine. And she went there with her mother-in-law. And there she used to weep. There she used to think about her husband. And she used to shed her tears.
whenever she was working in the fields, whenever she was cutting the grass, she was always thinking about her dead husband. Keats basically जो कहना चाह रहा है कि during that process when she was extremely sad, perhaps Ruth has also heard that song of Nightingale, and perhaps this song has given her solace, consolation, comfort, peace of mind. तो ये देखिए कि एक हिस्टोरिकल रेफरेंस वो बीच में दे रहा है, लेकिन वो इमेजिन कर रहा है इस सिचुएशन के मतलब कि हाँ, रुथ की कंडीशन जो थी वो बड़ी अनसर्टन थी. शी वॉज डाउन एंड आउट, शी वॉज ऑफ कलर बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड. तो उन ट्रेजिक मोमेंट्स के अंदर अगर कोई चीज़ उसको एंटरटेन करती थी, उसको मेस्मराइज करती थी, परहैप्स इट वॉज द सेम सॉन्ग, द सॉन्ग आई एम हियरिंग एट द मोमेंट. तो ये जो सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल है, इट इज़ हैविंग ए वेरी प्रोलॉन्ग हिस्ट्री. इट हैज़ एंटरटेन्ड द किंग्स, द क्लाउन्स, रुथ एंड सो मैनी अदर ह्यूमन जनरेशंस. टुडे इट इज़ आल्सो providing entertainment to John Keats. He is also feeling mesmerized because his condition is no more different from Ruth. She was also struggling and suffering. She was down and out. Keats' condition is also similar, and this song is providing him comfort and peace of mind. Further, थोड़ा सा फेरी टेल रेफरेंस और ये रोमांटिक पोइट्री का एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है. The same that oftentimes hath charmed magic casements opening on the form of the perilous seas in the fairy lands forlorn. Perhaps किसी कासल के अंदर, मेडिवल कासल के अंदर, तो जैसे हम बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे ना, फेरी टेल्स पढ़ते थे, किसी परी को कोई उठाकर ले जाता है, किसी शहजादी को कोई जिन उठाकर ले जाता है और जाकर उसको किसी कासल में बंद कर देता है और उस कासल तक कोई पहुँच नहीं पाता और उसको वहाँ पर इम्प्रिजन कर दिया जाता है. तो इतने बड़े कासल के अंदर वो जो तन्हा लड़की होती है वो घूमती रहती है, बाहर की दुनिया से उसका राब्ता नहीं रहता. हाँ, कोई एक विंडो, कोई एक खिड़की होती होगी जो बाहर की तरफ खुलती होगी, सामने गहरा बड़ा समंदर होता होगा और भागने का कोई रास्ता नहीं होता होगा. तो जब कभी वो उस खिड़की के पास जाकर बैठती होगी, परहैप्स शी यूज्ड टू हियर दिस सॉन्ग. सो दिस सॉन्ग हैज़ आल्सो प्रोवाइडेड entertainment to that girl, the girl who was suffering and struggling inside that castle. तो ये फैंटेस्टिकल रेफरेंसेस हैं. भले वो बाइबल से लेता है, फिर उसको कंस्ट्रक्ट करता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस, उसको रोमांटिसाइज करता है, फैब्रिकेट करता है, या वो इन मैजिक केसमेंट का जिक्र करता है, किसी कासल का रेफरेंस देता है, फेरी टेल रेफरेंस लेकर आता है. तो वंस अगेन दिस इज रिलेटेड टू फैंटेसी. So fantasy is one of the major aspect of romantic poetry and Keats is a master of that thing. तो देखिए कि किस तरह से ग्लोरीफाई किया जा रहा है जो नाइटिंगेल है, ये जो सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल है. आई होप यू आर क्लियर. इख्तिताम हमने कहाँ पर किया था? लव्स क्या था? forlorn. And what was the meaning of that word? Loneliness, solitude. लास्ट स्टैंजा का आगाज़ कहाँ से हो रहा है? forlorn. He is starting the last stanza where he has ended the second last stanza. Forlorn. Oh, the very word is like a bell. This very word is like a bell. कि जैसे इंसान एक वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी में हो, एक इंतहाई खूबसूरत ख्वाब देख रहा हो और एकदम से वो डर जाए, उसे कोई जगा दे और दोबारा से वो हकीकत की दुनिया में आ जाए. आपका ड्रीम भी होता है, आपका ख्वाब होता है, वो क्या होता है? इट्स अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी. और जब आप नींद से उठ जाते हैं, वंस अगेन यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी. तो कहते हैं कि वो जो ही वो लफ्ज़ आते हैं ना जिसमें forlorn, द वेरी वर्ड इज़ लाइक अ बेल. सो दिस वर्ड इज़ लाइक ए बेल. जैसे घंटी नहीं बजती और आप उठ जाते हैं,
आपके जो सेंसेस हैं एकदम से वो एक्टिव हो जाते हैं। टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, एंड दिस वर्ड हैज़ ब्रॉट मी बैक फ्रॉम दी टू माई सेल्फ। दिस वर्ड हैज़ ब्रॉट मी बैक फ्रॉम दी टू माई सेल्फ। So you can, you can see towards that triangle where he is coming back from the world of fantasy, from the world of idealism to the world of reality. तो ये एक बड़ा शॉर्ट हनीमून होता है जो वर्ल्ड ऑफ आइडियलिज्म का होता है। We want to get escape from the world of reality. We truly enjoy our time in the world of idealism. और ये जो शॉर्ट लिव्ड हनीमून होता है, once it is over, then once again you have to come back to your world of reality. तो ये ट्रायंगल फिर कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि फाइनली एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, आप जितना भी एस्केप कर लें वर्ल्ड ऑफ रियलिटी से, अल्टीमेटली यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट द रियलिटी। रियलिटी इज समथिंग दैट कैन नॉट बी डिनाइड। आप जो वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स है आप उसको डिसीव नहीं कर सकते हैं। यू आर बाउंड टू बी देयर, येस, जस्ट फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम यू कैन गेट एस्केपिज्म एंड यू कैन इंजॉय योर टाइम इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियलिज्म। हम सब अपनी ज़िंदगी के अंदर ख्याली पुलाव तो बनाते ही रहते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में तंग आ जाते हैं, सप्रेशन में, डिप्रेशन में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हम सब की एक वर्ल्ड ऑफ आइडियलिज्म है और हम शिफ्ट करते रहते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी टू द वर्ल्ड ऑफ आइडियलिज्म। वी वीव सम ड्रीम्स इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियलिज्म और फाइनली एकदम से कुछ ना कुछ होता है कि हमें दोबारा से वर्ल्ड ऑफ रियलिटी में आना पड़ता है। तो कीट्स के जो सबसे प्लस पॉइंट है एज ए पोइट वो ये है दैट ही इज़ हैविंग दैट मैजिकल एबिलिटी to take his readers to the world of imagination, to the world of fantasy. तो हम कीट्स के साथ साथ मूव कर रहे होते हैं। He is that type of poet who can control your nerves, your imagination. Adieu. The fancy cannot cheat so well as she is famed to do, deceiving elf. Yes, fancy cannot cheat so well as she is famed to do. Fancy means imagination. Kids believe that fancy or imagination, it is having a fame, that it can take you to the world of idealism. But it is a kind of deceiving elf जो वक्ती तौर के ऊपर आपको धोखा देती है। आप चंद लम्हों के लिए एक शॉर्ट लिव्ड हनीमून एंजॉय करते हैं एंड फाइनली यू हैव टू कम बैक टू योर वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। Adieu, adieu, thy plaintive anthem fades past the near meadows over the still stream. And since Keats is very much in the world of reality now, he is back from his world of imagination. So how he is saying goodbye, goodbye to Nightingale, goodbye to the songs of Nightingale. Adieu. Thy plaintive anthem fades. This beautiful song of Nightingale is now fading. अब वो जो आवाज़ जो कि उसके कानों के साथ टकरा रही थी, उसको पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड कर रही थी, नाउ इट इज़ फेडिंग. Or perhaps Nightingale is not sitting on the branch of the tree. It has moved somewhere else. तो वो जो एक डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बिटवीन द बर्ड एंड द पोएट, तो वो जो म्यूज़िक है वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिम होता जाएगा, फेड होता जाएगा. Past the near meadows, now it is no more in the meadows. Over the still stream, perhaps it is near the stream, that still stream. Up the hillside, or perhaps it is near the hillside, and now it is buried deep, and now the voice is over. Now the voice is over. I cannot hear it anymore. In the next valley glades,
or perhaps you can hear this beautiful voice in the glades, in the open fields, somewhere else, but a song is there. It is not here presently, but it must be somewhere else. अच्छा, लास्ट 2 लाइन्स जिससे मैं जिक्र कर रहा था कि कीट्स का एक करेक्टरिस्टिक है नेगेटिव कैपेबिलिटी का, एंड वी एक्चुअली एसोसिएट नेगेटिव कैपेबिलिटी विद शेक्सपियर. The concept of negative capability has been taken from William Shakespeare, but it was popularized in literature by John Keats, and he has mentioned negative capability in a letter that he wrote to his friend. तो वो नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है? नेगेटिव कैपेबिलिटी से मुराद ये है कि जब आप कन्फ्यूजन्स के अंदर होते हैं, when you want to search something logical, something reasonable, and you are unable to find the one. जब आप एम्बिगिटीज़ में होते हैं, आप अनसर्टनिटीज़ में होते हैं, आप कन्फ्यूजन्स के अंदर होते हैं, जब आपको कोई लॉजिकल कंक्लूजन किसी चीज़ का नज़र नहीं आ रहा होता, तो आपकी स्टेट कैसी स्टेट होती है? इट्स अ स्टेट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी. अच्छा, हम इस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करें? ये लास्ट 2 लाइन्स हैं, लास्ट स्टैंजा के हवाले से देखते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिव कैपेबिलिटी को हम कैसे लोकेट करेंगे. Was it a vision or a waking dream? Now he himself is confused about his situation. Forlorn, Bell, Keats is back to the real world. Keats is back to the real world. अच्छा, was it a vision or a waking dream? आगे क्वेश्चन मार्क है ना. Was it a vision or a waking dream? कि ये नींद में देखा गया ख्वाब है या खुली आंखों से देखा गया विजन है. He himself is confused about his condition. About the song of the nightingale. कि मैं सो चुका था, मैं जाग रहा था, क्या था? विजन था, रियलिटी थी, ठीक है, या रियलिटी और विजन के दरमियान की कोई कंडीशन थी. Fled is that music, do I wake or sleep? Now the music is no more there. The nightingale is no more there. The song of nightingale is no more there. Do I wake or sleep? Am I awake or am I sleeping? Am I alive or am I dead? This is his uncertain condition, when he is unable to decipher his own situation, whether he is alive or he is dead, he is waking or he is sleeping, the song is there or the song isn't there. तो कीट्स में जब आपको इस तरह की कन्फ्यूजन्स नज़र आती हैं कि जब वो अपनी ही क्रिएट की हुई सिचुएशन के मुतालिक खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो खुद ही अनसर्टन हो जाता है, and when he is not having any logical answer to his questions, so he leaves this situation for the reader to understand. Now it is up to the reader and the discretion of the reader to find out the answer, whether it was a vision or it was a reality or it was a created, fabricated world of John Keats. But the poem ends on a very strong note of negative capability. और नेगेटिव कैपेबिलिटी का कीट्स की पोइट्री में होना ज़रूरी क्यों है? वो ज़रूरी इसलिए भी है कि कीट्स हमेशा से इस बात पे बिलीव करता रहा है ना, जो ट्रांजिटरीनेस नेचर ऑफ ब्यूटी है, जो ट्रांजिटरीनेस नेचर ऑफ लाइफ है. सो थिंग्स आर नॉट परमानेंट इन दिस वर्ल्ड. इवन द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल, इट हैज़ टू लीव वन वे और द अदर. फाइन, आप आई थिंक कुछ कहना चाह रहे हैं. किसी भी पोइट की है, किसी भी पोइट की राइटिंग में हो सकती है. हाँ हाँ, सही है. देखिए, ये एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड है. नेगेटिव कैपेबिलिटी इज़ ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड व्हेन यू बिकम कंफ्यूज्ड अबाउट योर ओन सिचुएशन, अबाउट योर ओन बीइंग. तो आप इस पोएम के स्टार्ट को अगर आप देखें ना, जब ये ओड स्टार्ट होती है तो वो पहली 2-3 लाइन के अंदर ही अपनी फ़िज़िकल कंडीशन को डिफ़ाइन कर रहा है.
that he was in a state of indolence, he was uncertain, he was benumbed. तो बिल्कुल स्टार्ट से हमें इस चीज़ के मतलब आइडिया हो रहा है दैट ही इज़ फिजिकली नॉट ऑल दैट वेल. ठीक है, फिर आगे आप फर्दर डिफरेंट इमेजेस को देखते हैं जब आप वो उसका विंटेज का उसका हिपोक्रेन का आप वो देखते हैं जो कॉन्सेप्ट को लेते हैं. तो इसकी कंडीशन मोर और लेस वैसी ही कंडीशन है जैसी आपको एस टी कॉर्निश की नज़र आती है. ठीक है, वो स्पेशली डिजेक्शन एंड ओट को हमने देखा, या इवन कुबला हाँ के अंदर भी आप उसको देखते हैं कॉर्निश को. सो ही वॉज नेवर एवर सर्टन दैट वॉट ही इज़ गोइंग टू डू. स्पेशली डिजेक्शन एंड ओट के अंदर अगर आप देखें तो वो तो खुद इस चीज़ के मतलब एक्सप्रेस कर रहा है दैट आई एम अनएबल टू क्रिएट एनीथिंग सब्सटेंशियल. माई पोइटिक जीनियस इज़ नॉट वर्किंग, माई क्रिएटिव एबिलिटी इज़ वेरी मच डेड, माई नर्व्स आर नॉट वर्किंग, सो आई नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पिटस टू राइट समथिंग. और वो इम्पिटस क्या था? फाइनली इट वाज आई मीन सारा हचिंसन. ही वाज टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम सारा हचिंसन, and he has proved this fact that happiness is something that is always from within. If your inside is dead, you cannot find happiness in the outside world. तो कीट्स की जो कंडीशन है, it is once again the condition of Coleridge. He is benumbed, he is almost dead, dead as a poet, not as a person of course, dead as a poet. कि वो mean yes I want to write something, but I need a very strong inspiration, a very strong impetus. There should be a force behind my creativity. एक पोइट को हमेशा से किसी impetus की ज़रूरत होती है, एक पावरफुल फोर्स की ज़रूरत होती है ताकि वो इस चीज़ को क्रिएट कर सके. जब तक वो मीडियम आपको नहीं मिलेगा ना, आप उस चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकेंगे. यस प्लीज़. Yes, I mean mentally they were not stable because of the pressure of circumstances. Fine. Exactly. Exactly. I mean अगर आप शेक्सपियर में आप हैमलेट को देखते हैं तो हैमलेट एक ज़बरदस्त किस्म का करैक्टर है कि जिसको आप नेगेटिव कैपेबिलिटी के एंगल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. स्पेशली व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज सोलेरिकीज, तो अपनी सोलेरिकीज के अंदर व्हेन ही इज़ टॉकिंग अबाउट द फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, व्हेन ही इज़ थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज, व्हेन ही वाज कंफ्यूज्ड अबाउट मोरालिटी एंड ड्यूटी, सो ही वाज आल्सो कंफ्यूज्ड. हैमलेट का एक करैक्टर मोस्ट कंफ्यूज करैक्टर है. वो कभी भी आर्टिकुलेटेड नहीं है अबाउट हिज फ्यूचर एक्ट्स. सो यू कैन फाइंड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी इवन इन शेक्सपियर. उसके अंदर यूज़ था. मैं इसके मतलब कंफर्म तो नहीं कह सकता कि शेक्सपियर ने कभी खुद इस टर्म को यूज़ किया हुआ है अपने किसी लेटर में या अपनी किसी बुक में, नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात करो, लेकिन कीट्स ने तो इस टर्म को यूज़ किया, पॉपुलराइज़ किया, लिखा लेटर के अंदर, और अपनी पोइट्री के मतलब इस चीज़ के मतलब बताया दैट समटाइम्स आई मीन कीट्स हिमसेल्फ इज सेइंग दैट ही फील्स इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, uncertainties, and he is always unable to understand and decipher his own condition, that what he is up to. तो उसकी पोइट्री में टाइम एंड अगेन आपको इस तरह के क्वेश्चन मार्क नज़र आएंगे. इवन जब आप नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ हम जाते हैं, सो यू विल फाइंड दिस सॉर्ट ऑफ कंडीशन एंड सिचुएशंस. एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? नो क्वेश्चन? Okay, fine. So this is the completion of our first ode. Hopefully next हम start करेंगे ode to Grecian Earth.